Hello student, I am Ashish Chawla and today we do the exercise 1.2. The question number first is express each number as a product of its prime factors. The first part is 140. Let's see the solution. हमें 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. नंबर इज 140. प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमें आता है. हम इस नंबर को प्राइम से डिवाइड करते जाएंगे. तो सबसे पहला प्राइम दैट इज 2. 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 70. फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे वी आर गेटिंग 35. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम इज 3. 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. देन 5 इट इज डिविजिबल बाय 5. 5 से डिवाइड करेंगे 7. फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 1. तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है. सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज 2. 2 दो बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर. 5 एक बार आ रहा है. 7 एक बार आ रहा है. So the prime factorization of 140 is 2 square into 5 into 7. Now move to the second, that is 156. 156. Okay. 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सबसे पहले 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन है. 7 8 78. Now 78 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं अगेन. 3 9 39. Now 39 is divisible by 3. 1 3 and 13 is a prime number तो 13 से divisible होगा ये. That is 1. So the prime factorization of 156 is दो बार रिपीट हो रहा है तो यानी 2 का स्क्वायर into 3 into 13. So this is the prime factorization of 156. Now the next number is 3825. Next number is 3825. चलिए देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. क्योंकि ये ऑड नंबर है 2 से डिवाइड तो होगा नहीं. डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है दैट इज 5 प्लस 2 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 3 18. तो यानी ये 3 से डिविजिबल होगा. तो 3825 डिवाइडेड बाय 3 वी आर गेटिंग 1 2 7 5. अगेन it is divisible by 3 because the digit sum is divisible by 3. So 3 4 2 5. Now it is not divisible by 3 because digit sum is not divisible by 3. So we have to divide it by 5. Next prime is 5. 5 8 40 2 25 85. Again it is divisible by 5. 1 17. And 17 is a prime, so 17 is divisible by itself only. That is 1. So 3 8 2 5 is equals to 3 2 times repeat हो रहा है तो 3 square. 5 दो बार repeat हो रहा है 5 square into 17. So the answer is 3 square into 5 square into 17. Now we move to the next part, fourth one. That is 505. It is divisible by 5 first. The first prime is 5. So 1 0 0 1. Now it is not divisible by 5, so we have to divide it by 7. 7 one time, 3 30. 30 divided by 7, that is 4 times. Remainder is 2 21. 21 divided by 7, that is 3. Now that is 143. Now 143 is not divisible by 7. Then after 7 the next prime is 11. It is divisible by 11 because the sum of the digit at the odd places and the sum of the digit at the even places, their difference is 0. So it is divisible by 11. One time 13. And 13 is itself prime, so 13 is divisible by itself, that is one time. So the prime factorization of 5005 is 5 into 7 into 11 into 13. So this is the prime factorization of 5005. Now we move to the next part, that is the fifth part, that is 7429. 7429. It is not divisible by 2, it is not divisible by 3, and it is not divisible by 5 as well, not 7.
एंड नॉट बाय 11 एज वेल। तो 13 से भी ये डिविजिबल नहीं है, तो 17 से ट्राई करेंगे। 17 से इसको ट्राई करेंगे तो वी आर गेटिंग 4 3 7। नाउ 437 is divisible by now 19, 2 times, then 3, 23 times, and 23 itself is a prime, so 23 is divisible by itself, that is 1 times. So 7429 can be written as 17 into 19 into 23. So this is the prime factorization of 7429. Now we move to the next question. In the second question, find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equals to the product of the number. The first question is 26 and 91. इसमें हमें 26 और 91 के LCM और SCF दोनों निकालने हैं और हमें ये शो करना है कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो सबसे पहले तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट इज डिविजिबल बाय 2 फर्स्ट 13 टाइम्स, देन 13 1 टाइम्स। 91 का भी कर लेते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 7 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम। So the prime factorization of 26 is 2 into 13 और 91 is 7 into 13. SCF हमें मालूम होता है it is a product of all common prime factor with least exponent. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में क्या है। दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर 13 है और इसका लीस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1 है, पावर 1 लगी है दोनों में, तो SCF is 13. नाउ LCM की बात करते हैं। LCM is the product of all prime factors, जितने प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं इनमें, that is 2 7 13, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। सबके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 ही है तो इसको 1 ही लगाएंगे हम। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो वी आर गेटिंग 182। ठीक है, LCM is 182 and SCF is 13. अब हमें शो करना था कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट है, यानी करते हैं LCM into SCF, that is 13 into 182। इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 2366। फिर हम जो नंबर्स हैं हमारे दैट इज 26 और 91 उनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन वी आर गेटिंग 2366। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि LCM into SCF is equals to the product of number. Therefore LCM into SCF is equals to the product of number. Clear? Now in the same way we move to the second part. In the second part we have to show for the 510 and 92, 510 and 92। तो सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग 2 5 5। now it is divisible by 3 8 times 5 times। now it is divisible by 5 17 times। now it is divisible by 71 time। so the 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। now 92 का भी करेंगे हम, पहले 2 से 46, फिर वापस 2 से, सॉरी 46, yes correct, 46 divided by 2 that is 23 and 23 is a prime number, 23 divisible 23 that is 1। so the prime factorization of 510 is 2 into 3 into 5 into 17 and the prime factorization of 92 is 2 square into 23। now सबसे पहले हम SCF की बात कर लें। SCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। तो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है और 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो लीस्ट एक्सपोनेंट कौन सा हुआ 1 हुआ, यहाँ पे 1 है एक तरह से, तो 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट 1 है, यानी SCF तो हो गया 2। बात करते हैं LCM की।
LCM होता है all prime factors, that is 2, 3, 5, 17, 23. All prime factors with their greatest exponent. 2 का greatest exponent 2 है, बाकी सबके 1 है. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 23,460. LCM that we are getting is 23,460. So यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं. लेट्स से SCF into LCM करते हैं, that is 2 into 23,460. So we are getting 46,920. और नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे that is 510 into 92, तो we are getting again 46,920. So in both the case, that is SCF into LCM 46,920, and the product of the number is also 46,920. We are getting the same result. So again we say that SCF into LCM is equals to the product of number. Now we move to the third part, that is 336 and 54. तो सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें. स्टार्ट विथ 2, 1, 6, 8. Again with 2, 8, 4. Again with 2, 4, 2. Again with 2, 2, 1, 3, 7 times 7, 1 time. Now 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 से किया 27, 3 से किया 9 times, 3 से किया 3 times, 3 से किया 1 time. So the prime factorization of 336 is 2. देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4. तो लिखेंगे 2 की पावर 4, 3 into 7. और 54 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है और 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 क्यूब. सो इनका अगर हम SCF की बात करें पहले, तो कॉमन प्राइम फैक्टर तो 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है. 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट 1, 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट 1, तो SCF तो हो गया 6. LCM all prime factors, that is 2, 3, 7 with greatest exponent. 2 का greatest exponent 4, 3 का 3 और 7 का 1. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग LCM as 3024. सो अब वापस से हम इनका प्रोडक्ट करें SCF और LCM का. SCF into LCM करें यानी 6 into 3024, we are getting 18,144. सेम वे अगर प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट करें, again we are getting same 18,144. So therefore SCF into LCM is equals to product of number. So ये इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. Now we move to the next question, question number 3. Now we move to the question number 3. Again we have to find the LCM and HCF of the following numbers by prime factorization. पहले वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ 2 नंबर्स का निकाल रहे थे, इस बार हमें 3 नंबर्स गिवन है. मेथड वही रहेगा सेम. Let's move to the third question. Solution for the first part, that is 12, 15 and 21. तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम. 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से किया 5 टाइम्स, 5 से किया 1 टाइम. 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3, 7 टाइम्स, 7, 1 टाइम. So the prime factorization of 12 is 2 square into 3. 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 और 21 का 3 into 7. नाउ अगर हम SCF की बात करें पहले तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो तीनों में कॉमन है. 3 सब में कॉमन नजर आ रहा है और 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो SCF तो हो गया 3. नाउ LCM की बात करें तो ऑल प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2, 3, 5, 7 और इन सब के ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट. तो तीनों में 2 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2 है
3 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 ही है, 5 का भी 1 है, 7 का भी 1 है। जब हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 420. So the SCF is 3 and LCM is 420. Now we move to the next question, next part of this question, second one, that is 17, 23 and 29. As we know that all these are prime, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ये खुद ही रहेंगे, क्लियर। 17 ही रहेगा, ये 23 ही रहेगा और ये 29 ही रहेगा। तो SCF की बात करें तो इनमें तो कुछ कॉमन नज़र आ ही नहीं रहा, तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इनका SCF 1 होगा और इनका LCM, तो ये ऑल प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, तो ये इसका LCM आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग 11,339. Now we move to the next part of it, question number 3, sorry third part, that is 8, 9 and 25. So अगर 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दैट इज 2 का क्यूब, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दैट इज 3 स्क्वायर एंड 25 का फैक्टराइजेशन करें दैट इज 5 स्क्वायर। SCF की बात करें तो इनमें से कुछ कॉमन नज़र ही नहीं आ रहा, तो SCF हो गया इनका 1। LCM all prime factors, that is 2, 3, 5 with greatest exponent, that is 3, that is 2, that is 2. So the LCM is 1800. So their SCF is 1 and the LCM is 1800. Thank you.